جی ویورز، اب وقت ہو چکا ہے ہمارے ایسٹرالوجی کے سیگمنٹ کا، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیاقت سبطین صاحب. اور یہاں میں ہمارے پول کا جو ہمارا آج کا کویشچن ہے وہ ریپیٹ کرتی چلوں. وہ یہ ہے، کیا انسان پہلے بندر تھا؟ اس کا جواب اپنے ہاں یا نہیں میں دینا ہے. اور اب ہم ویلکم کریں گے ہمارے ایسٹرالوجر لیاقت سبطین صاحب کو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر ہمارا جو پول کا سوال ہے آج، کچھ ہمارے ذائچوں سے، کچھ ستاروں کے حال سے کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا؟ جی سنا تو یہی ہے. سنا تو یہی ہے. نہیں سر، کچھ پتہ نہیں چلتا کچھ اس طرح کی چیز، کوئی ہسٹری کے بارے میں؟ ہسٹری میں ایسا سنا ہے کہ پہلے ایسا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کیا، تبدیل کیا، اور یہ آہستہ آہستہ پھر انسان کی شکل اختیار کر گیا. پر سر ہم لوگ تو کچھ اس طرح بھی، ہمارا تو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ حضرت آدم نے وہ جو کیا تھا، پھر حضرت حوا کے ساتھ ان کو زمین پہ نیچے بھیجا گیا، اور ان کو پنشمنٹ تھی اس طرح کی چیز، اور پھر اس طرح نسل جو ہے وہ آگے بڑھی. تو وہ ایز سچ انسان کی ہی نسل، وہ انسان، وہ ہیومن، تو ہیومن سے ہی آگے بڑھے. اب اس کے بیچ میں ایک ہمارا اس طرح کا کانسیپٹ ہے، اور پھر اوپر سے ایک سائنٹیفک کانسیپٹ جو ہے وہ ہے بندر سے ایوالو ہونے والا. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ انسان بندر ہے؟ ابھی تو بندر بھی نہیں رہا انسان. ابھی تو اتنا خطرناک ہو گیا کہ بندر سے بھی آگے نکل گیا. گوریلا بن گیا، بڑا والا گوریلا بن گیا. حالات اتنے، لوگ اتنے خود غرض ہو گئے ہیں، اتنا محبت، پیار اور جو رواداریاں تھیں وہ بہت بڑی حد تک ختم ہو گئی ہیں. لوگ خود غرضی پہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو اگر مجھ سے کوئی کام ہوگا تو میں آپ کا فون اٹھاؤں گا، اگر کام نہیں ہوگا تو فون نہیں اٹھاؤں گا. مطلب یہ اتنی خود غرضی اس حد تک بڑھ گئی ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے میں سمجھتا ہوں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ انسان ہے. آپ لاکھ عبادت کر لیں، لاکھ سجدے کر لیں، تسبیحیں کر لیں، یہ کچھ نہیں جب تک آپ انسان کو بہتر طور پر نہیں لیں گے. کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ عمل ہے وہ انسان ہے. انسان اس کی مخلوق سے پیار کرے، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے. آپ کی تسبیح، آپ کی نماز، روزہ، وہ تو کہتا ہے میں چاہوں تو قبول کروں، نہ چاہوں تو لوٹا کے تمہارے منہ پہ مار دوں. لیکن انسانوں کے لیے جو اس کی مخلوق ہے، جو اس سے پیار کرتے ہیں. سر آپ نے اتنی اچھی ایک بات کی ہے، میں جو ہر بار فیل کرتی ہوں، میں یہ فیل کرتی ہوں کہ لوگ پوری نماز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن باہر نکل کے جیسے باہر نکلے دوسرے انسان کا حق مارنا، اس سے جھوٹ بولنا، غلط وعدہ کرنا، اور جسے کہتے ہیں نا رشوت لینا، اور یہ ساری چیزیں ایک دم سے، مطلب اس نماز، روزے، ان سب چیزوں کا کیا فائدہ جب آپ نے باہر نکل کے اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ ہی اس نے سلوک نہیں کیا. حقوق العباد کی بات ہے نا. بالکل خدا کہتے ہیں کہ تم چاہے میرے حق پورے نہ کرو، لیکن حقوق العباد جو ہے بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے. بالکل اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. وہ ہے نا کہ کسی بھی خواہش کی پیروی کر مگر تذلیل آدم نہ کر، کہ احترام بشر سے بہتر کوئی نظام جہان. اللہ کے نزدیک اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ اس کا انسان ہے، وہ اس کا مخلوق ہے. ہے. ہمارے پاس ایک کال موجود ہے، کال اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ میں کلیم احمد بات کر رہا ہوں. کلیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا ہے. ہاں جی، کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پول کے بارے میں؟ ہاں، پول کے بارے میں اصل میں یہ عرض کرنا تھا کہ یہ کنسیپٹ ڈارون کی تھیوری کے حساب سے بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ انسان شروع میں بندر تھا. تو وہ بھی ایک پروپیگنڈا تھا ان کا، کوئی اس میں خاص کوئی ان کو وہ سکسیس نہیں ملی. تو بھی بینگ اے مسلم وی ڈونٹ بلیو کہ انسان پہلے بندر تھا، کیونکہ انسان ایک ایکسیپٹیبل مخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ساری مخلوقات سے قرار دیا ہے، تو ہم یہ محسوس نہیں کر سکتے کبھی بھی کہ انسان بندر ہو سکتا ہے. تو انسان ہمیشہ سے انسان رہا ہے اور رہے گا. صحیح. اور اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا ووٹ جو ہے نہیں کی سائٹ پہ چلا گیا ہے. لیاقت سبطین صاحب موجود ہیں، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میں لیاقت سبطین صاحب سے صرف اتنا پوچھنا تھا کہ ان سے پہلے بات ہوئی تھی. لیاقت سبطین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. آپ نے میری میرج کا بتایا تھا کہ وہ تھوڑی سی اپسیٹ چل رہی ہے، لیکن وائف جو ہے وہ اسٹون جو ہے وہ پہننا نہیں چاہ رہی ہیں. تو یہ مجھے بتائیے کہ میری شادی خدا نہ خواستہ بریک تو نہیں ہوگی ان فیوچر، اور دوسری شادی ہے پھر لائف میں؟ جی ڈیٹ بتائیے. اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے کلیم صاحب.
8 नवंबर 8 नवंबर 1957 1967 नहीं ना 57 57 ओके कहाँ पैदा हुए कितने बजे? कराची 9 रात को 9 बजे रात को 9 बजे कराची में अच्छा तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अच्छा ओके आपकी मैरिटल लाइफ के बारे में चले हम आपको बता रहे हैं ठीक है जी थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जी सर जी क्या होगा कि मैरिटल लाइफ का 1957 की पैदाइश है तो बाय नाउ उनकी एज होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 54 तो होगी 54 जी if I'm एज not से क्या होता है, हौसले जवान होने चाहिए। ये भी है हौसले जवान होने चाहिए। हंसते जवान होने चाहिए सही बात है। ठीक है सर क्या होगा उनकी वाइफ नहीं पहन रही वो स्टोन जो आपने बताया था वो तो ज़रूरी है भाई उनके लिए, अगर वो स्टोन नहीं पहनेंगी तो फिर मामला जो है ना वो बन नहीं पाएगा, मामला बहुत हद तक ख़राब हो जाएंगे। इसके लिए चूँकि आपके जायचे में जो सूरत हाल बनी हुई थी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके जायचे की जो पोजीशन बनी हुई थी वो मैरिज के हवाले से बड़ी ख़तरनाक थी। अब उसमें ये कैसे चल गई, मैं समझता हूँ कि शायद आपके वाइफ के नसीब में ऐसा नहीं था, लेकिन कोशिश भरपूर हुई और अल्लाह करे ये मज़ीद चल जाए, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा अरसा तो नहीं रह गया, लेकिन जायचे में कोई दूसरी शादी का योग आपके मौजूद नहीं है। मेरा ख़्याल है कि आपको इसी पे ही गुजारा करना चाहिए, और जो मैंने इसके सदक़ात आपको बताए हैं वो सदक़ात आप इनके करते रहें। और दूसरा, अगर कोशिश करें, रिंग नहीं पहन सकती तो कम से कम कोई लॉकेट टाइप का कोई इस तरह का बना के आप इनको पहना सकते हैं, उससे भी इनको वो असर ज़रूर होगा उसका। ओके अच्छा सर हमारे पास एक और कॉल मौजूद है अटेंड करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। गुड अर्ली मॉर्निंग कौन बात कर रहे हैं राही खान बात कर रहा हूँ। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक आप ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी हमारे पोल का जवाब दीजिए जी जवाब ये है कि इंसान जैसा था पहले, आज से 5000 साल पहले, 3000 साल पहले, बिल्कुल उसी तरीके से आज भी है, सिर्फ डायमेंशन उसके साइजेस में फर्क आ गया। साइजेस में फर्क आ गया ठीक है जी, इसके अलावा अदरवाइज वो बंदर नहीं था जी हाँ, एप्स में से नहीं था। एप्स में से नहीं था चले जी ठीक है अच्छा लिया के साथ बैठे हैं कुछ पूछना चाहेंगे जी लिया साहब अस्सलाम वालेकुम। जी चाय पी रहे थे चाय वालेकुम सलाम। साहब मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी जी बताइए बताइए। 4 नवंबर 4 नवंबर पूरी बताइए 1967 1967 टाइम बताइए 8 PM 8 PM लाहौर क्या पूछना 8 चाहेंगे PM 8 PM 8 हाँ जी क्या पूछना चाहेंगे अच्छा लेफ्ट साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हुआ हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड हूँ ओके और गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो जॉबलेस हूँ। और कई सबसे सालों पहले- से आप जॉबलेस हैं जी 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 बिल्कुल। मैं इससे पहले H1 वीजे पे अच्छा वाला जॉब कर रहा था, फिर वहाँ क्या हालात सही नहीं रहे तो वापस आ गया बैक वापस टू आना पाकिस्तान। ठीक है जी हाँ। और उसके बाद अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली है पाकिस्तान के, तो वैसे ही आपको पता है कि इकॉनमी कैसी है और रिसेशन कैसा चल रहा है, हर तरफ ही है, तो अभी तक जॉब नहीं है मेरे पास। और दूसरी चीज ये है कि मैं दोबारा जाना चाह रहा हूँ वापस, मेरे H1 का हो जाए या कुछ इमिग्रेशन का हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल कैसी रहेगी, क्या मैं रिसेंटली जा सकता हूँ, ट्रैवल चलिए मेरा हम है? आपको बताते हैं ठीक है जी प्लीज जरा डिटेल चलिए, में बता thank you दीजिए। so जी जी much. जी आप फिक्र नहीं करें जी। सर फाइनेंशियली जी। परेशान है क्या वापस जी। जाके जॉब करेंगे या यहीं पे होगी क्या होगा जी भाई, जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है, एसेंडेंट जो है वो टॉरस है, सौर जिसका सितारा ज़ोरा है, और मून साइन आपका स्कॉर्पियो है, अकरब इसका सितारा मरीख है। बात यह है कि पाकिस्तान में चूँकि आपकी सूरत हाल जो है बैरून मुल्क के हवाले से बहुत मजबूत है, तो पाकिस्तान में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मुल्क से बाहर जाएं, क्योंकि आप एक नेशनलिटी की तरफ जा रहे हैं जो कि आपने हासिल करनी है। और ये 2012 मई जून से मैं समझता हूँ कि आपकी सूरत हाल, क्योंकि जुपिटर आपके एसेंडेंट में आ रहा है, लगन में आ रहा है, तो कोई अच्छी आपको खुशी देगा। मुमकिन है सफ़र वगैरह हो जाए, ट्रैवल हो जाए, और एक अच्छी सिमत की तरफ आपकी जो सूरत हाल है वो मैं जाते हुए देख रहा हूँ। और सही। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में बहुत अच्छी पोजीशन है,
बहुत सर कामयाब मून एंड जिंदगी स्कॉर्पियो में तो उनकी सार सिटी वाला टाइम शुरू हो गया। नहीं, वो अभी बहुत देर है उसमें, अभी देर कम है। से कम 5 साल है। लेकिन Okay. उसमें मैंने आपको बहुत हाँ, पहले वो भी ये आपने मतलब बात की 3 थी स्टार्स करके जी डिवाइड हाँ करके जी हाँ। और बताया था। दूसरा ये कि उसमें पीरियड अगर अच्छा हो तो फिर साथ इतनी परेशान इतना नहीं परेशान नहीं करती है। कॉल हमारे पास मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्थ, गुड मॉर्निंग गुड हेल्दी मॉर्निंग। जी। मुरसलीन साहब पहचान लिया मैंने आपको आज। बहुत शुक्रिया। आपके हाँ यहाँ जी। मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं तो मैं हर एक का जो है ना असेसमेंट लेना चाहता हूँ। पहले तो हमारे पोल का जवाब दीजिए मुरसलीन साहब। भाई मैं नहीं में जवाब दूंगा। नहीं में जवाब देंगे, चलिए जी ठीक है। आप पूछिए क्या पूछना है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी डेट ऑफ बर्थ जो है मेरी 8 दिसंबर 1948। 8 दिसंबर 1948। टाइम बताइएगा। तकरीबन कई सुबह 11 से 12 के दरमियान। सुबह 11 से 12 के दरमियान। कहाँ? हैदराबाद से। हैदराबाद से। हाँ जी, वही प्रॉब्लम। जी मतलब मुझे याद करना था, ठीक मेरा है। बिजनेस है और मेरा बिजनेस बहुत एस्टेब्लिश था, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 सालों कितने से बजे मेरे पैदा पर- हुए? कितने बजे पैदा हुए? सुबह 11 से 12 के बीच में। आपका वही बिजनेस का प्रॉब्लम है, मुझे याद है। जी 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 मैं तो डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा, तो ठीक अब मैं याद कर रहा था राकेश साहब कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, मैं लाखों का खेलता था, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 सालों से मैं बहुत क्राइसिस में हूँ। मैं इतने क्राइसिस में हूँ कि आई कांट डिफाइन इट हो गया। तो जरा साहब ये बताएं जी कि मैं इस क्राइसिस से, मुझे कुछ डेडलाइन बताइएगा कि मैं इस क्राइसिस से कब निकलूंगा, इसकी वजूहत क्या है, आया फिर किसी किस्म की बंदिश या क्या वजूहत है कि मैं जो है ना बिल्कुल जीरो पर आ गया हूँ। हम आपको बता रहे हैं। जी, हम आप- डिटेल में बताइएगा। ठीक कोई है सवाल तो नहीं पूछ रहा आप? नहीं, नहीं, बाकी बस तो ठीक याद ही है। थैंक यू you, सो मच फॉर कॉल। हाँ जी ठीक सर। है जी भाई, इस जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है वो जद्दी है, कैप्रिकॉर्न, जिसका सितारा जोल है, और मून साइन आपका एक्वेरियस है, दल्लू, इसका भी सितारा जोल है। बात यह है कि सैटर्न वाले जो लोग होते हैं इनका बुढ़ापा कभी ख़राब नहीं हो सकता, ये हमेशा, ये इनमें सारी चमक ही बुढ़ापे में आती है। तो आपको एक साड़सती का जो एक ढैया टाइप का जिसको हम कहते हैं, ऐसी एक सूरत हाल बनी हुई, यानी जुपिटर का दौर है जो जायचे में 12वें घर में है, और ये सब पीरियड में है। ये कोई तकरीबन 3-3.25 साल का दौर होता है ये जुपिटर का। ये जैसे ही आपको ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ताला, तो मैं समझता हूँ कि 2012 से आप पे दोबारा निखार आना शुरू हो जाएगा और आप अपने बेहतर कारोबार की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अगर हो सके तो इसकी थोड़ी बहुत रेमेडी भी आप कर सकते हैं, यानी ये कर लें कि कोई बुखराज पहन लें या पीली किसी भी चीज़ का सदका कर लें, इससे आपको काफ़ी बेहतरी आएगी। सर कोई बंदिश वगैरह तो नहीं है? इनको हमेशा ही शक होता है कि शायद कोई बंदिश हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आदमी का जहन कमज़ोर हो जाता है तो वो फिर इस तरह के वसवसों का शिकार हो जाता है। और नहीं सर, एक और बात भी तो है ना, देखिए जब किसी के ऊपर एकदम से नॉन स्टॉप इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो वहम तो इंसान के जहन में, इंसान बड़ा वहमी है, ऑटोमेटिकली अच्छे बुरे आते रहते हैं ना। कि देखे कोई आदमी जेल में होता है, फिर जेल से निकल के एक बड़ी पोजीशन पे आ जाता है, फिर आदमी वो तो बड़ी पोजीशन से जेल में भी चला जाता है। तो वो वक्त है ना, वो वक्त तब्दील होते रहते हैं। जब टाइम पे चेंज होगा, अच्छा वक्त आएगा। तो इसी तरह ही हर आदमी, हमारे यहाँ तो ये एक कंसेप्ट बन गया लोगों के जहनों में कि जी वो जादू है, जादू है, जादू है। हालांकि ऐसा नहीं है। जादू ज़्यादा से ज़्यादा कोई होगा, आप पता है किसी जादूगर के पास जाएं तो वो 1 लाख रुपया लेता है जादू करने का। अच्छा। हाँ, और वो बड़े गंदे तरीके से, पता नहीं गलाजत खा के और क्या अल्लाह नौज़ बिल्ला करके वो इस तरह का वो काम करते हैं। तो वो 1-1.5 लाख रुपया लेते हैं। तो अब किसी को क्या ज़रूरत है कि किसी पे 1-1.5 लाख रुपया खर्च, वो तो कोई प्रॉपर कोई इस किस्म की कोई दुश्मनी हो या कोई, तो लोग ऐसे। और मैं समझता हूँ कि जादू जिस तरह है ना कि अर्राशी वल मुर्तशी फिन नारी जहन्नम, यानी लेने और देने वाले दोनों, इसी तरह जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों जहन्नमी, यानी दोनों बराबर के शरीक हैं उस गुनाह के अंदर। सही। तो अच्छा सर, हमारे पास एक और कॉल जी, मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं जहरा बात कर रही हूँ कराची से। जी जहरा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे पोल का जवाब दीजिएगा। हाँ। इंसान पहले बंदर था? नहीं, इंसान बंदर नहीं था। ओके, चलिए जी, इंसान बंदर नहीं था। अब जाके अच्छा, सर मुझे बैठे। हाँ जी, डेट ऑफ मुझे बर्थ रियासत बताइए। साहब से पूछना था।
मेरे भाई के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 अगस्त 18 अगस्त 1980। 1980। टाइम बताइए। 1 से 2 बजे रात को। सत्तर में पैदा हुए। ठीक है, हाँ जी, मुझे याद आ गया। हाँ जी। पूछना था कि इनकी मैरिज कब होगी और ये स्टेबल कब होंगे और इनके चिल्ड्रन कितने, सत्ता, सोन और वेट बता। इतनी सारी चीजें नहीं बता सकते हम ज़हरा। अच्छा तो शादी का बता देते हैं। हाँ ठीक है। शादी कब होगी और स्टेबल कब होंगे ये बता रहा। शादी और स्टेबिलिटी कब आएगी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मेरी लाइट नहीं है, आप कौन है मुझे बताइए, फोन पे बता दें।